Hi guys, welcome back to Road to Cat 99 and we are continuing with set 2 of Target 99 plus series in the Quant, right? So we are starting with the Cat 2023 questions and after we are done with Cat 2023 slot 1, slot 2 and slot 3, we will shift our entire focus on the mocks of the previous years and we are starting LRDI series in 1 or 2 days starting from solving the past year mocks of IMS, SimCAT, SameCATs, TL, CDC, Kraku mocks, right? So be with me till the cat, and I hope you would have a great learning by that time. So let's start. So basically at 2023 का मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ बिकॉज आई फील कि अगर आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए पहले कि कैट 2023 सॉल्वेबल था, राइट? बिकॉज काफी लोग बोल रहे हैं कि सॉल्वेबल नहीं था, काफी डिफिकल्ट था, 2-3 क्वेश्चन कर पाए, 3-4 क्वेश्चन कर पाए। तो एक जनरल अप्रोच बताऊंगा कि अगर मैं वहां पे होता तो हाउ वुड आई हैव डन दैट। एंड टू बी ऑनेस्ट, लाइक दिस इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस और फर्स्ट encounter with slot 1, right? So if I'm seeing something on the screen, if I'm taking more time, then that means I would have taken this much time during the exam also, right? So this is the main agenda, to provide you raw information, to provide your perspective from a student's point of view. And whatever you are learning out of this series, please keep making notes. Thank you. And yeah, please like the channel, share the channel, subscribe the channel. Thank you. So, क्या कह रहा है? Brishti went on a 8-hour trip in a car. Before the trip, the car had traveled a total of, just 1 minute. The car had traveled a total of X kilometer till then, where X is a whole number and is palindromic, right? Palindromic, I feel, is a number which is same if you read from left to right or left right to left, right? So that is palindromic. Like 3 2 3 is a palindromic. समझाया हुआ है that is X remains unchanged when its digits are reversed, right? At the end of the trip, तो हम इसको highlight कर लेंगे. At the end of the trip, the car had traveled a total of, till then, ठीक है, 8 आवर ट्रिप थी, राइट? उससे पहले कार चली थी हमारी एक्स किलोमीटर, ये बोल रहा है। उसके पहले जो कार चली थी वो हमारी थी एक्स किलोमीटर, राइट? एट द एंड ऑफ द ट्रिप द कार हैड ट्रेवल्ड a total of 26862 kilometer, and this is also a palindromic number. This number again being palindromic. If British never drove at more than 110 kilometer per hour, then the greatest possible average speed. So basically देखो, right, x kilometer plus something less than equal to 880, right? क्योंकि उसने 110 किलोमीटर से ज्यादा तो चला ही नहीं है। Then the greatest possible average speed at which she drove during the trip. During the trip उसका average speed greatest, and this is 26862, right? Then the greatest possible average speed at which she drove during the trip. During the trip मतलब यहाँ पे उसने कितनी की स्पीड से चलाई होगी? 90 की, 100 की, 80 की, 110 की? टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे मुझे दिमाग लगाने का कोई सेंस नहीं लग रहा। सेंस मुझे इसलिए नहीं लग रहा, मैं सीधा ऑप्शन से एक एक करके उठाऊंगा, उसको चेक करूंगा, मेरे मैक्सिमम 2-3 मिनट लगेंगे एंड मेरा सीधा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्पीड 110 की होती, राइट, यू विल गो डायरेक्टली टू द कैलकुलेटर, यू विल फाइंड की 110 किलोमीटर स्पीड में 8 आवर अगर वो चलाएगी तो 880 किलोमीटर वो ट्रेवल करेगी। सो 26862 माइनस 880 वुड बी 25982. 25982 is the value of x, but this number is not palindromic number, right? So this option is gone, so this is gone, right? और उसमें ग्रेटेस्ट पॉसिबल एवरेज स्पीड पूछा, इसलिए आई एम स्टार्टिंग विद द हाईएस्ट वैल्यू। अब 110 ही है तो 100 का देखते हैं। 100 वुड भी यहाँ पे 800 आ जाएगा, राइट? सो व्हाट आई विल डू, 26862 माइनस 800, दैट इज 26062। दैट इज, एक सेकेंड, कहाँ गया कर्सर? हाँ, देन x इज इक्वल टू 26062। दिस इज ए पैलिंड्रोमिक नंबर, राइट, एंड दिस इज ए होल नंबर, सो दिस शुड बी द आंसर। मैं डायरेक्टली अपना आंसर बी मार्क कर दूंगा। इतना सिंपल क्वेश्चन था, दिखने में लग रहा है बहुत बड़ा, बट
दिस इज नॉट एज लेंथी और एज कॉम्प्लेक्स एज इट सीम्स, राइट? तो जो गंदा पेपर होता है उसमें कई बार इजी क्वेश्चंस भी हार्ड लगते हैं, राइट? The minor angle between the hours and the minute hands of a clock was observed at 8:48 a.m. Right. बेसिकली एंगल का फॉर्मूला ये होता है कि 11/2 m minus 30h का मोड, दिस इज द थीटा बिटवीन आर एंड मिनट एंड, राइट? अब 8:48 am पे क्या होता है? थीटा कितना हो जाएगा? मोड ऑफ 11/2, मिनट्स कितने हैं 48, माइनस आवर्स कितने हैं 8, राइट? दिस शुड बी द थिंग। तो अब इसका क्या आएगा? 24 into 11 माइनस 240, दैट इज 24 डिग्री, राइट? थीटा क्या होगा हमारा? 24 डिग्री। द मिनिमम ड्यूरेशन इन मिनट्स आफ्टर 4 व्हेन दिस एंगल इंक्रीज बाय 50%। तो मतलब 36 डिग्री। 36 डिग्री कब बनेगा? वो कितने मिनट्स पे बनेगा, राइट? तो 36 इज इक्वल टू 11/2 एम हमें फाइंड करना है -240, राइट? तो एक तो एम क्या आएगा? अब अगर आप सिंपल सोल्व करोगे, इसमें कुछ बड़ी बात है नहीं सोल्व करने को, राइट? 240 प्लस 36 इंटू 2, 552/11 आ रहा है एक तो, 552/11। और एक क्या आएगा? मोड, मोड फंक्शन है ना, तो मोड की तरह आपको सोल्व करना पड़ेगा, राइट? 240 माइनस 36 इंटू 2, दैट इज 408/11, राइट? अब इसमें ऑलरेडी पहले 48 मिनट्स थे। 48 मिनट्स को अगर मैं 11 एज ए डिनोमिनेटर लिखूं तो क्या आ जाएगा? जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस। हाँ, तो इसमें क्या हो रहा है, एक सेकंड समझने दो। 552/11 देखते हैं कितना आता है। सो 552/11 इज 50.18 मिनट्स, ओके। एंड 408/11 तो 37 मिनट्स है, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो 552 वाला पॉसिबल है, 408 वाला इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो 48 से कम आ रहा है ना। वो पॉसिबल है बट घड़ी तो आगे बढ़ेगी ना, टाइम आगे बढ़ेगा, राइट? तो अगर 552/11 माइनस 48 कर दूंगा, बिकॉज मुझे एडिशनल मिनट्स देखने हैं, तो माई आंसर वुड बी 24/11। 24/11, दैट इज 2। So answer would be 2, right? So again, this is a very simple question. The only knowledge that you require in this type of question is theta is equal to 11 mod of 11/2 m minus 30h. Everyone please note this thing. In an examination, the average marks of 4 girls and 6 boys is 24. 4 girls and 6 boys is equal to 240. Each of the girls has the same marks while each of the boys has the same marks. Okay. If the marks of any girl is at most double, कोई भी marks of any boy, right? At most double, right? If marks of any girl is at most double, right? इसकी maximum value is less than equal to 2 boy, right? Right? If B is the marks that any boy is getting, right? So G is the marks any girl is getting, right? So G should be less than equal to 2B, right? If the marks of any girl is at most double, but not less than the marks of any boy, but not less than, that means strictly greater. This is the equation that we need to take care of. Then the number of possible distinct integer values of total marks of 2 girls and 6 boys. Total marks of 2 girls and 6 boys. Basically, हमें 2G plus 6B की नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज फाइंड करनी है, और आई कैन से G plus 3B की। अब देख लेते हैं G और B का फॉर्मेट क्या, इंटीजर है या क्या है?
each of the girl has the same marks or each of the boys has the same marks? Okay. चलो चलो देखते हैं. So this would become 2z plus 3b is equal to 240, right? अब अगर मैं एक्सट्रीम केस लेता हूं तो G120 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा, राइट? अब उससे भी छोटा केस लूंगा तो ऐसे केस बनते जाएंगे. बट क्या G हमारा B से ग्रेटर भी है इसमें और लेस देन 2b तो नहीं है, तो ये केस तो नहीं आएगा. थोड़ा सा और हिट एंड ट्रायल करके देखते हैं. इसको मैं 100 लूंगा, दैट इज 200. तो ये मेरा 40/3 आएगा. तो तब भी ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा. ऑब्वियसली G ग्रेटर देन B से है, बट G इज नॉट लेस देन 2b. तो ऐसा केस नहीं लेंगे. G की और वैल्यू कम करते हैं, लेट से इसको 80 लेते हैं. तो दिस वुड बी 80/3. तो फिर 160/3 से लेस है ये नहीं है, तो ये भी केस नहीं आएगा. थोड़ा सा और डिक्रीज करके देखते हैं. थोड़ा हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, एंड आई डोंट थिंक कि इतनी कुछ बुरी चीज है अगर आप हिट एंड ट्रायल कर रहे हो इस क्वेश्चन. तो इसको अगर 60 लूंगा मैं तो 120 और ये 120 और ये 40 आ जाएगा. सो दैट मीन्स G इज ग्रेटर देन B फॉर श्योर, एंड G इज ऑल्सो लेस देन 2b. तो ये सेटिस्फाई कर रहा है. अब ये देखना होगा कि इसके ऊपर वाले सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं. 60-40 तो सेटिस्फाई कर रहा है. अब 70 कर रहा है या नहीं, क्योंकि मे भी ऊपर वाले केस हमने मिस कर दिए. ये 100 आ जाएगा, तो ये 100/3. तो तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा. लेट्स टेक 69. मे बी लेट्स टेक 69. अगर मैं 69 लूंगा तो क्या आएगा? 69 और बी की वैल्यू क्या आएगी? 102/3. 102/3. ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा. 68 लेके देखते हैं. लेट्स से आई थिंक 68 के क्लोज होगा. अगर 68 ये लूंगा मैं, है ना, तो मेरा आ जाएगा 68 इंटू 2 - 240. दैट इज 104/3 आ जाएगा मेरा बी की वैल्यू. राइट, मेरी बी की वैल्यू 104/3 आएगी, है ना. इसमें आई थिंक मेरा सेटिस्फाई कर रहा है. 68 एंड 104/3 में कर रहा है ना. इसमें कर रहा है. 69 पे एक बार चेक कर लेते हैं. आई थिंक उसमें कुछ रह ना गया हो बस, है ना. अगर मैं इसको 69 करूं, देन 240, 69, 102/3 आएगा. बेसिकली दो दो से कम हो रहा है जितना दिख रहा है मुझे. 102/3. तो ये सेटिस्फाई मेरा नहीं हो रहा आई थिंक, क्योंकि डबल अगर मैं करूंगा 204/3 आएगा 68. 69 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 68. तो 69 तो नहीं आएगा, बट 208/3 इज मेरा 69.33, राइट. तो मेरा यहाँ से केस स्टार्ट होगा. देखो सिंपल, 68 से केस स्टार्ट होगा. 104/3. अब हमें लोअर मार्क देना है. स्टार्ट तो यहाँ से होगा, देखते हैं एंड कहाँ पे होगा. अगर मैं 50 लूं तो 52 से 100, 140/3. एंड तो जी इज ग्रेटर फॉर श्योर. तो 50 से थोड़ा सा कम लेते हैं. लेट्स से 45 लेते हैं. 45 में मेरा आएगा 90, एंड 240 - 90 डिवाइड बाई 3, तो ये मेरा आ जाएगा 50. तो अगर मेरा बॉयज 50 आ गए, वो पॉसिबल नहीं है बिकॉज जी हैज टू बी ग्रेटर देन बी. तो ये तो गया. 47 लेके देखते हैं. अगर मैं 47 लूं, थोड़ा, अगर आप इसकी कैलकुलेशन आपकी फास्ट है ना, तब आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, राइट. तो बी आ रहा है मेरा 48.66. गर्ल्स ग्रेटर नहीं है इसमें भी, तो 47 भी नहीं ले सकते. लेट्स ट्राई आउट विथ 48. आई थिंक आई एम नॉट फॉलोइंग द राइट अप्रोच मे बी. 48 भी नहीं आएगा बिकॉज 48 पे दिस इज ऑल्सो कमिंग एज 48, बट जी हैज टू बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बी.
आई थिंक 49 आएगा और यहाँ पे कुछ आएगा, तो 68 से लेके 49 तक सारे सॉल्यूशंस आएंगे अकॉर्डिंग टू मी। तो 68 से अगर मैं 49 तक करूं तो दीज आर 20 सॉल्यूशंस, राइट, दीज आर द 20 सॉल्यूशंस, सो 20 शुड बी आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, आई थिंक सारे सारे स्टूडेंट्स इसको सोल्व नहीं कर पाते क्योंकि ये प्रोसेस कभी कभी टायरिंग हो जाता है एग्जाम में, एंड यू स्टार्ट फीलिंग दैट यू आर गिविंग मोर टाइम, बट द ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन इज दैट if you are giving more time, then you also know that you will be able to solve this question within a stipulated time for, let's say, 3 4 minutes maybe, and you will also get for sure 3 marks. A mixture of tea is formed by removing a certain amount of coffee from a coffee jar and replacing the same amount with cocoa powder. The same amount is again removed from mixture P and replaced with same amount of cocoa powder to form a new mixture Q. Okay. If the ratio of coffee and cocoa in the mixture Q is 6, then the ratio of okay. Let's first understand the question. Right? एक कोई कॉफी जार था, लेट्स से एक कॉफी जार है, उसकी टोटल क्वांटिटी है x, राइट, इसमें से आप क्या करते हो, y रिमूव कर रहे हो, y अपना माइनस कर रहे हो, राइट। तो अब देखो पहले हम हमें इसमें कंसेप्ट यही रहेगा, कंसेप्ट आप नोट करो कि जब भी रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन होता है ना, तो जो चीज को रिप्लेस कर रहे हैं उसको नहीं देखते, है ना, जो चीज कांस्टेंट पड़ी रहती है उसको देखते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे कोकोआ पाउडर ऐड हो रहा है, तो हम फोकस देंगे अपनी कॉफी पे। तो कॉफी स्टार्टिंग में देखो क्या थी, हमारी कॉफी पहले एक्स थी, राइट, और पी मिक्सचर में कॉफी कितनी हो गई, वाई, एक्स माइनस वाई, राइट। पी मिक्सचर में कॉफी कितनी होगी, एक्स माइनस वाई, ये तो हमें सीधा पता लगा क्योंकि एक्स से हमने वाई निकाल दिया, राइट। या इसको फाइंड करने का फॉर्मूला एक और है कि पहले जो हमारे पास इनिशियल मिक्सचर था एक्स इंटू फाइनल वैल्यू बाय इनिशियल वैल्यू, राइट, इंटू फाइनल वैल्यू बाय इनिशियल वैल्यू का क्या मतलब है, अब जब आप निकाल लोगे एक्स में से वाई तो फाइनल वैल्यू क्या बचेगी, एक्स माइनस वाई, और इनिशियल वैल्यू क्या थी एक्स, तो एक्स से एक्स कट गया, तो यहां से भी आ जाएगा कि कॉफी की क्वांटिटी एक्स माइनस वाई थी। और ये हमेशा वर्क करता है फॉर्मूला उस पे जो चीज चेंज ना हो रही हो, राइट, क्योंकि हम निकाल कॉफी रहे हैं बट रिप्लेस कॉफी को कर रहे हैं, बट कॉफी नहीं ऐड नहीं कर रहे, नया ऐड क्या हो रहा है, कोकोआ पाउडर, तो हमारा पूरा ध्यान होगा कॉफी पे, राइट। अब क्यू में क्या हो रहा है, द सेम अमाउंट इज अगेन रिमूव फ्रॉम मिक्सचर पी एंड रिप्लेस विद सेम अमाउंट ऑफ कोकोआ पाउडर। इसमें भी देखो कोकोआ पाउडर नया आ रहा है, तो हम क्यू में क्या करेंगे, हमारी क्वांटिटी स्टार्टिंग थी एक्स माइनस वाई, फाइनल क्वांटिटी क्या हुई, देखो एक्स माइनस वाई थी, फिर हमने वाई कोकोआ पाउडर ऐड कर दिया, तो टोटल तो हमारा एक्स रहा, तो और फिर हमने वाई रिमूव किया, तो एक्स माइनस वाई बाई एक्स, राइट, समझो इसको। तो पी में हमारी कॉफी इतनी है और क्यू में हमारी कॉफी इतनी है, राइट। इफ द रेशियो ऑफ कॉफी एंड कोकोआ इन मिक्सचर क्यू, ओके, थोड़ा सा हैवी क्वेश्चन है। इफ द रेशियो ऑफ कॉफी एंड कोकोआ इन द मिक्सचर क्यू, कॉफी कितनी है, इतनी है, राइट, और कोकोआ कितना है, टोटल एक्स माइनस कॉफी इज इक्वल टू 16/9, राइट। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, और नीचे बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन वाई का होल स्क्वायर, राइट। अब एक्स माइनस वाई को मैं 4 लिख सकता हूँ, और एक्स को मैं लिख सकता हूँ 5, क्योंकि नीचे आपकी इक्वेशन बिठानी है, ऊपर भी बिठानी है, तो यहां से मेरा वाई कितना आ जाएगा, 1, ये मुझे पता लग गया, राइट। अब देखो इसने क्या बचा, देन द रेशियो ऑफ कोकोआ इन मिक्सचर पी, रेशियो ऑफ कोकोआ इन मिक्सचर पी टू दैट इन मिक्सचर क्यू। अब यहाँ पे कॉफी की आपको वैल्यू पता है, तो आप कोकोआ की निकालने के लिए क्या करोगे, एक्स माइनस एक्स प्लस वाई, दैट इज वाई, और यहाँ पे कोकोआ की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बाई एक्स, वाई की वैल्यू आपको पता है 1, एक्स की वैल्यू 5, 5 माइनस 1 16, एक्स की वैल्यू 5, 5/9, 5/9 शुड बी योर आंसर, दैट इज 30। ठीक है, अगेन यार ये मुझे बहुत सिंपल लग रहे हैं क्वेश्चन, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक अभी हमने किया ये वाला क्वेश्चन, देखो कुछ भी नहीं था, जस्ट हमने 2 ऑप्शन किए और हमारा आंसर निकल आया। इसमें अगर आपको फॉर्मूला पता है तो कर लोगे, बट अब आपको फॉर्मूला पता है तो आप कर लोगे। ये अगेन क्वेश्चन, दिस वाज वेरी इजी एंड दिस हैज बीन रिपीटेडली कमिंग इन द मॉक्स आल्सो, सो
one must have practiced enough for the CAT 2023, or the one who has practiced enough must have solved it in the examination. It is a tiring question, might take some time. My approach is this one. I prefer simple approaches, but yeah, there might be some good approaches, but I think इतना तो करना ही पड़ेगा. इसमें आई थिंक अगेन इफ यू हैव कंसेप्चुअल नॉलेज, राइट, अगर आपको ये चीज अभी समझ नहीं आई तो जस्ट गो बैक 7 6 7 months back in my YouTube channel. I have explained all these concepts quite beautifully there, right? So please try to understand these concepts and then give it a shot, right? And obviously there are 100 new approaches to this question, बट द पॉइंट इज कि जब आप एग्जाम में जाओगे वो जो अप्रोचेस बनती हैं वो आफ्टर द एग्जाम बनती हैं. मैं सोल्व कर रहा हूँ व्हेन with a mindset of giving a live exam or appearing for the CAT 2023 in the mock center or in the test center, right? मैं उस तरीके से solve कर रहा हूँ, so I'm not using any external sources to know more about the new approaches. The knowledge which I have currently, I'm just building on that. I'm just solving through that, right? So let's see this नेक्स्ट क्वेश्चन. ये भी मुझे इजी लग रहा है, आई डोंट नो ये हार्ड है इजी है, बट लेट्स सी. सीता गीता की सैलरी का रेशियो है, तो लेट्स से एस जी एम की मैंने सैलरी सीधा लिख दी 5x 6x 7x बिकॉज दिस इज माई हैबिट, सो आई एम डूइंग दिस. इन द फर्स्ट ईयर दे गेट सैलरी हाइक्स ऑफ दिस रिस्पेक्टिवली. अब फर्स्ट ईयर में सैलरी हाइक जब आई तो इसका 6x हो गया और इसका हो जाएगा 7.5x एंड इसका हो जाएगा 8.4x, राइट? इन द सेकेंड ईयर, हाँ, सबसे फर्स्ट ईयर पे तो रिस्पेक्टिवली इन द सेकेंड ईयर सीता मीता, ओके, सीता एंड मीता गेट सैलरी हाइक ऑफ 40%. इसका अगर 40% मैं करूं तो 8.4x. अब देखो, द ओनली मिस्टेक मैनी कैंडिडेट्स माइट हैव मेड कि उन्होंने एक क्वेश्चन में सीता मीता को सीता गीता समझ लिया होगा या कुछ और समझ लिया होगा, राइट? एंड फिर काटा पीटी करके दोबारा उनको अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना पड़ा होगा. सो डोंट एवर डू दिस टाइप ऑफ मिस्टेक्स. एंड जनरली द कैंडिडेट keeps doing these type of mistakes in the mocks, but yeah, mocks are for the learning purpose, and I think everyone should at least note these things कि अगर उनको silly mistakes हो रही हैं बार बार, तो मैं तो हमेशा नोट करता था, right? So that I get an idea कि मैंने कितनी बार करी है और मुझे बार बार नहीं कर. Now I understand, I read the questions very carefully, and believe me, it saves a lot of time. अब 8.4 को अगर मैं 1.25 से करूंगा तो I am getting 10.5x. And I used to, and I generally do all these calculations through the on-screen calculator. So it helps me a lot. And the salary of Geeta becomes equal to the mean salary of the three friends. Mean मतलब average salary, right? तो गीता की सैलरी लेते हैं x, तो इनकी मीन सैलरी आएगी डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू x, दैट इज 3x. तो 2x इज इक्वल टू 18.9x. तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? 9.45x, राइट? तो इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई 9.45x. The salary hike of Geeta in the second year. Salary hike of Geeta क्या आएगी? 9.45x minus 7.5, that is 1.95 by 7.5, right? ये आप कैलकुलेटर से कर लो. 26% should be the salary hike for Geeta, right? Geeta sells two objects A and B at the same price such that she makes a profit of 20% on the object A and loss of 10% on the object B. I think there is a concept related to this question, but currently I'm not able to recall those concepts. And to be honest, like I haven't read uh, a lot of concepts in the profit and loss because उसको मैं simple ही रखता हूँ. When you appear for the SSC or other competitive exams, obviously you get a lot more knowledge about how to correct these questions within few minutes or seconds. But a simple approach देखते हैं. Geeta sells two objects at the same price, so that she makes a profit of 20%. ठीक है, प्राइस सेम है. लेट से 100x दोनों का प्राइस है, ए का और बी का. दिस इज एसपी, राइट? तो ए का सीपी क्या होगा? प्रॉफिट ऑफ 100 बाय, लेट से ए का 100x ये है, तो इसको 120x बना दूंगा, है ना, जस्ट फॉर माई ईज, राइट? एंड अ लॉस ऑफ 10%, तो बी का सीपी क्या होगा? 120 बाय
0.9, that is 1200 by 9x, or I can say 400x by 3, right? B का CP. If she increases the selling prices, the objects A and B are still sold at an equal price and a profit of 10% is made on object B. तो अब सेलिंग प्राइस दोनों का क्या हो जाएगा? 10% प्रॉफिट इस पे बनाना है ना, तो इसको 11/10 करना है मुझे. सो बेसिकली इसको 440x/3 करना है, और इस पे भी 440x/3 का बेचूंगा, इसको भी 440x/3 का बेचूंगा. देन द प्रॉफिट मेड ऑन ऑब्जेक्ट विल बी नियरेस्ट टू. प्रीटी सिंपल क्वेश्चन, राइट? प्रीटी सिंपल क्वेश्चन. मतलब 140x/3 का प्रॉफिट बनेगा, एंड 140/3 कितना होता है आप देख लो, मोटा मोटा 47 के अराउंड होगा, 47%, राइट? तो the slot one is like seems to be very one of the easiest ones, right? People must have attempted a lot, and this is your right opportunity. कभी आपका slot easy आ गया तो you should at least boost your score in the one of the easiest sections. अगर क्वांट इतना easy आया है तो आपको 40 30 30 मार्क्स लेके आने चाहिए थे, so that you get a lot higher marks as compared to other slots. आपका ओवरऑल स्कोर भी बढ़ जाए, है ना? और बाद में अगर आपका डीएलआर वीआरसी कुछ भी नीचे ऊपर हो तो वो कंपनसेट हो जाए क्वांट्स के स्कोर से, राइट? ऑलवेज फोकस ऑन दिस अप्रोच. ये भी मुझे ठीक लग रहा है, मतलब देखने में मुझे समझ आ जाता है क्वेश्चन कैसे है. अब ये सही लग रहा है. लेट्स सी, बिकॉज ऐसा मैंने पढ़ा हुआ है. A to B, B to A, ये सब पढ़ा हुआ है. बहुत स्टार्टिंग सेम रूल. ठीक है, A B. अरविंद जी यहाँ से चल रहे हैं और सुरभि जी यहाँ से चल रही हैं, राइट? दोनों सेम टाइम सेम रूट, सेम टाइम सेम रूट. ये ऐसे चल रहा है, ये बंदा ऐसे चल रहा है. अरविंद टेक 6 hours टू रीच टाउन बी, राइट? अगर इसको 6 hours लगता है, अगर मैं अरविंद की स्पीड को ए मानता हूं, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? 6 से. वाइल सुरभि टेक 24 hours टू रीच टाउन ए. तो सुरभि की स्पीड मुझे बता सकते हो कितनी है? अगर उसको 24 लग रहे हैं, उसकी स्पीड ये रही, उसको कवर करना है 6 से डिस्टेंस, तो सुरभि की स्पीड कितनी हुई? A/4. सुरभि की स्पीड आ गई A/4, अरविंद की स्पीड है A, और टोटल डिस्टेंस है 6 A. हमारा क्वेश्चन आधा खत्म हो गया. इफ अरविंद ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ 44 km/h, राइट? ए की वैल्यू कितना है? 54 km/h. देन द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. अरे ये कैसा क्वेश्चन हुआ? ये तो ओके 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 ओके, सॉरी 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 सॉरी. I have missed one important part. After meeting each other, Arvind takes 6 hours and Surbhi takes 24 hours. ठीक है, let me explain again. तो वो क्या बोल रहा है? ये टाउन ए है, ये टाउन बी है, यहाँ पे अरविंद है, यहाँ पे सुरभि है. वो दोनों साथ में चलेंगे, वो कहीं यहाँ पे मिलते हैं. उसके बाद सुरभि इधर चली जाती है और अरविंद इधर चला जाता है. अरविंद को यहां से आफ्टर मीटिंग अरविंद टेक्स 6 hours एंड सुरभि टेक्स 24 hours, राइट? हाँ, इसका जरूर कंसेप्ट है, प्लीज नोट दैट. वो मैं बताने वाला हूँ, राइट? ठीक है. सो बेसिकली, राइट, गॉट माई पॉइंट? यहां तक समझ आया सभी को, है ना? सो बेसिकली यहाँ पे कंसेप्ट क्या होता है? यहाँ पे कंसेप्ट ये होता है कि देखो, यहां से यहां तक ट्रेवल करने में, अगर अरविंद यहाँ से यहाँ पहुंचा और सुरभि यहाँ से यहाँ पहुंची और सेम टाइम पे चली, तो मतलब सुरभि को जितना टाइम यहाँ से यहाँ लगे, लेट्स से इट्स T hours, तो अरविंद को भी यहाँ से यहाँ तक T hours ही लगे होंगे. जब सेम टाइम पे वो चले हैं और एक जगह कहीं पहुंच गए, तो उसको T hours ही लगे होंगे. तो इस T की वैल्यू हमेशा क्या होती है? T = √24 × 6. उनका टाइम आफ्टर मीटिंग, वो कितने कितने अपने रिस्पेक्टिव पॉइंट पे कितनी बार पहुंचते हैं. दिस इज लाइक अ स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसेप्ट, राइट? इस पे बहुत क्वेश्चंस कैट में आए हैं, और ये सीधा मतलब डिट्टो क्वेश्चन उन्होंने दे रखा है, राइट? दिस शुड हैव बीन डन एट एनी कॉस्ट. तो टी का मतलब 12 घंटे. तो इसमें क्या हुआ, इसमें क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ये कंसेप्ट नोट करो, है ना? तो इसमें हमें पता है कि अरविंद जी यहां से चल के यहाँ पे
पहुंचते हैं और सुरभि यहाँ पहुंचती है। उसके बाद सुरभि को इधर जाना है तो उसको 24 घंटे लगते हैं। अरविंद को यहाँ से यहाँ जाना है तो 6 घंटे। तो अरविंद को यहाँ से यहाँ लगे हैं 12 घंटे और सुरभि को यहाँ से यहाँ लगे हैं 12 घंटे। तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल पे सुरभि लेती है 36 आवर्स कंसेप्चुअली, राइट, 12 और 24, और अरविंद लेते हैं 18 आवर्स। तो फास्ट स्पीड किसकी हुई सेम डिस्टेंस में? अगर सुरभि की स्पीड ए है तो अरविंद की स्पीड होगी 2a। इतना पता लग गया। नाउ लेट्स सी, इफ अरविंद ट्रेवल्ड एट ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर। अब अरविंद अगर 54 किलोमीटर की ट्रेवल स्पीड से ट्रेवल कर रहा है तो ए की वैल्यू मेरे पास 27 आ गई। Then the distance between town A and B. Now I just have to do 18 into 2A. 18 into 2A. That is 36 into 27. Should be my answer. 36 into 27 आप कर लो, जो भी आंसर है that should be your answer. That is 972 kilometer is the distance. Again a very very simple question. हमने पिछली वीडियो में देखा था, बिल्कुल कुछ नहीं था पूरे पेपर में। इस वीडियो में भी let me just give you a recap. देखो ये क्वेश्चन, मतलब मैं सोच नहीं सकता अगर आपसे नहीं हो रहा। अगर आप कुछ अपनी अप्रोच बना रहे हो, कुछ एग्जाम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच रहे हो, तब नहीं होगा। सिंपल ऑप्शन से जाओगे हो जाएगा। ये क्वेश्चन लेट से यू आर नॉट एबल टू डू बिकॉज कैट में ऐसा क्वेश्चन कभी आया नहीं है पहले, लाइक इन द लास्ट 3-4 years, सो one might not be able to do. Let's ignore this question completely. You don't need to even put 1-2 seconds into thinking that whether you should go for it or not, because if you don't know it, then keep ignoring, at least in the first round, right? Again, this question was easy, but I would put it on the moderate side because it involves a working of 2 to 3 minutes, and the candidate might get tired. Let's ignore. This is simple question, and if you're done with the mixture allegations, I believe you should be able to do that because a similar question has also been appeared in 2018, 2019. So when it comes to this question, I think this question can be done by any type of student. If there is a grade 10 student, grade 11 student, or if you are in UG, if you are not prepared for the CAT, still you can do this type of question. This is a very simple question, very basic question, and it will give you 3 marks, right? So I think you should focus on these questions rather than focusing on the questions that involves a lot of thinking skills that are completely new to the paper, right? Again, this question is like a no-brainer, right? You have to just follow what they are saying, and you will be done with the question within few seconds. Again, when it comes to this type of question, you either know the concept that t is equal to root this, or if even if you don't know the concept, you can just assume that the speed is a or this is that, and still you will be able to do that. उस केस में आप कैसे करते हैं? उस केस में भी अगेन सिंपल होता। अगर अरविंद ऐसे चल रहा है ना, यहाँ पे, और अगर सुरभि को इतना डिस्टेंस करने में 24 आवर लग रहे हैं, लेट्स से सुरभि की स्पीड है 24s, और अरविंद को अगर यहाँ तक करने में 6 आवर लग रहे हैं, तो दिस डिस्टेंस शुड बी 6 से, टोटल डिस्टेंस 24s प्लस 6 से करके अगेन वो सोल्व हो जाता। it might have taken a lot of time or maybe 2-3 minutes extra, but yeah, it was solvable, right? So the basic purpose of this series is to show you that the questions are solvable, and the questions are solvable by the easy approach, right? आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत सारा सिलेबस, बहुत सारे फॉर्मूलेज रटने की जरूरत नहीं है। आप अपनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी अच्छी रखो, प्रैक्टिस पे हाथ रखो, ताकि आपको क्वेश्चन बिना पढ़े सिर्फ देख के समझ आ जाए कि क्वेश्चन डुएबल है या नहीं है, राइट? इसके अलावा किसी को इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यू जस्ट कीप फॉलोइंग दिस सीरीज टिल द एंड, एंड आई होप and I'm pretty sure that by the end of the cat or by the time of the cat, you will get a strong hold over the quants. You will be there with new topics, with new learnings, and with new formulas, new shortcuts, and with a lot of self confidence. That is the main motto of this series. One thing that I want to tell you all ki, if I am teaching you something through these questions, please make a note of it. I have told you some concepts like t square is equal to, or t is equal to root this, and theta is equal to 11 by 2 m minus 30h ka mode, right? And then there are some other conceptual things that I have told you regarding the allegations and mixture, and also in the previous videos also, right? Please keep taking a note of
all these things, because I don't think that after 3 months you will remember these things if you don't take a note of all these things. And also it will be very hard for you to cover all such videos in one go. So better to revise, better to watch these videos as and when it comes. Subscribe to the channel, hit the bell notification so that whenever the video gets released, you will get notified about the same. Thank you and have a very happy day.